Well, hello student, once again. We are doing our book Indian Economics, and the chapter which we are doing is the industry. Industry revolution from eve of independence to 1990, and our today's topic is small scale industry. The very first topic is subtopic under this topic is the meaning of small scale industry. So those industry whose capital does not exceed of 5 crores, यानी कि जिसकी कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती, हर वो तरह की इंडस्ट्री हमारे लिए क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले ये जो अमाउंट था ये दूसरा था, लेकिन अब इसका जो अमाउंट है वो 5 करोड़ ही है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में कभी ऑप्शन आता है तो आपको 5 करोड़ ही इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई. What are the main characteristics of SSI? The number one is that SSI is labor intensive. As we all know that small scale industry uses the law of capital. It's depend law of capital for its production. So to carry out production, it is more dependent on the labor factor. यानी कि अपने प्रोडक्शन को चलाने के लिए ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो कैपिटल पे कम और लेबर पे ज़्यादा डिपेंड रहती है। The second point is that it is more location flexibility. Now what is location flexibility? Let's consider if we have to set up a large scale industry, then it is more convenient to set up such industry where the raw material could be easily available. अगर हमें लार्ज इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली कन्वीनियंटली अवेलेबल होता है वहाँ पे ये इंडस्ट्री सेटअप करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस तरह का कोई केस नहीं होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वी नीड द मच लेसर अमाउंट ऑफ द रॉ मटेरियल विच कुड बी इजीली अरेंज फ्रॉम एनीवेयर. ओके. The third point is that it needs small investment. Yes, it is true, as we already discussed, that small scale industry needed the low amount of capital to get started with. The second point which we do here is the features of industrial growth. Well, what are the features that we seen during the period of 1950 to 1990 during our industrial growth? Well, number one is the public enterprises. The role of public enterprises is the key role. It means the main part is to be played by the public enterprises and role of private enterprises are of secondary one. यानी कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल था वो पब्लिक सेक्टर का था, ना कि प्राइवेट सेक्टर का। देखिए, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट. इट may come individually in a form of question also. What is import substitute? Import substitute means the government facilitated to produce those type of goods or those type of substitute good for whose substitute we are importing from outside. गवर्नमेंट जो है उस तरह के गुड्स का प्रोडक्शन चाहती है कि वो प्रोडक्शन हो जिस तरह के जो गुड्स हमें बाहर से सब्सटीट्यूट करने ना पड़े. लेट्स सपोज अगर हम कोई कार बाहर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसके सब्सटीट्यूट कार के दूसरे कार यहाँ पे प्रोड्यूस करें, जिससे कि हमें वो कार वहाँ से मंगानी ना पड़े, इंपोर्ट ना करनी पड़े. ये पॉलिसी फोकस करती है कि हमें इंपोर्ट नहीं करना और हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड ना होकर सेल्फ डिपेंडेंट होना है प्रोडक्शन में. ठीक है. Well, domestic industry was protected from foreign competition. देखिए, during this period all the industry as import goods are not favorable by the country's policy, so domestic industry are totally protected from the foreign competition. क्योंकि बाहर से गुड्स आते ही नहीं थे, तो जब कंपटीशन ही नहीं होगा, बाहर से गुड्स ही नहीं आएंगे तो कंपटीशन भी नहीं होगा. ठीक है. देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने का जो माइंडसेट था वो ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हमारे कंट्री में साथ साथ में होता रहे. Well, and next one is that small scale industry was developed with a view to achieve objective of employment and equity.
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इसलिए कहा गया है कि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव, तो ये एम्प्लॉयमेंट तो प्रोड्यूस करेगा ही। नाउ व्हाट हियर इज मीन इक्विटी। इक्विटी का यहाँ पे क्या मतलब है? इक्विटी का यहाँ पे मतलब है रीजनल इक्विलिटी, रीजनल इक्विटी और इक्वालिटी और इम्बैलेंस को दूर करना। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हमारे जो पिछड़े जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर अगर छोटी छोटी इंडस्ट्री लगेंगी तो वहाँ पे इनकम के सोर्सेज और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, जिससे वहाँ पे जो रीजनल इम्बैलेंस है वो कम से कम हो। ठीक है, ये थे यहाँ के पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गुड इफेक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसका गुड इफेक्ट क्या है? वेल, इकोनॉमिक ग्रोथ गोट अ बिग पुश। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारी इकोनॉमी पे एक बड़ा हेल्प हुआ। ठीक है, ये बताया गया कि फ्रॉम 1950 टू 1990 द एनुअल ग्रोथ इज ऑफ 6%। जो हमारे प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में एनुअल ग्रोथ रेट करीबन 6% की रही है। देयर वाज ए मार्क डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए, पहले हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतने ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री का डेवलप होना शुरू हुआ वहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में और ज़्यादा ऑप्शंस भी डेवलप होना शुरू हो गए। देखिए, जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री बढ़ी हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप भी देखने को मिला। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है कि दैट द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल जस्टिस इम्बैलेंस ऑफ रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने से हमें मिलता है, और जो लोग बैकवर्ड हैं उनकी इनकम को ग्रोथ करने से मिलता है, और ये दोनों ही अचीवमेंट हमारी करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज द बैड इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ व्हाट आर द बैड इम्पैक्ट? One of the bad impact is that public sector monopoly turn out to be some bad characters like inefficiency and the corruption। जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे उनमें क्योंकि उनकी काफ़ी लंबे समय तक मोनोपोली चली है, और मोनोपोली के चलते उनमें कुछ बैड फीचर्स देखने को मिले, जैसे कि वो इनएफिशिएंट हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पर अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की कमी होगी, करप्शन जैसी चीज़ें वहाँ पर देखने की मिली, और अल्टीमेटली उनका प्रोडक्शन और उनका आउटपुट गिरना शुरू हो गया। सेकेंड वन इज दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन। जो हमने बहुत दिनों तक अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंपोर्ट से और बाहरी कंपटीशन से बचा के रखा था, उसका एक बैड इम्पैक्ट ये हुआ है कि उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी उस क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, उनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। देखिए, अगर कंपटीशन होगा तो कंपटीशन के चलते लोग एक दूसरे के प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें कंपटीशन में बने रहना है। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनका किसी के साथ कंपटीशन था ही नहीं, तो उन्होंने कोई अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट भी नहीं किया। थर्ड वन इज जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी थी उसमें हमारा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन था वो ट्रांजैक्शन फेल हुआ, और उस ट्रांजैक्शन का जो सीधा इम्पैक्ट है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर देखने को मिला है। बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन विद इन फ्रॉम दिस पीरियड। ओके, सो हियर वी completed this chapter of industry. Make concern notes and ask if you have any doubt.